अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का खुश आमदीद मस्जिद सामीन और तलबा। आज हम कुछ और मज़ीद पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ पर वजाहत करेंगे। आपने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ ली थी, जो पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ थी, जिसमें आपका एटॉमिक रेडियस था, आयनिक रेडियस था, आयनाइजेशन एनर्जी थी और इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, एंथैल्पी। फिर उसके बाद आज ट्रेंड्स के बारे में कुछ हम आपसे बात करेंगे। पीरियाडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, हाउ डू दे वेरी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कल एक हमने ग्राफ आपको दिया था जिसमें ट्रेंड जो है दिखाई पड़ रहा था। यहाँ पर ख़ास तौर से जो है ऑक्सीडेशन स्टेट की बात होगी। किसी यौगिक के फॉर्मेशन में, किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन में, किसी एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज डेवलप होता है, उसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम द वैलेंसी। लेट मी क्लैरिफाई इन फर्दर स्टांसेस पैराग्राफ। Valence is the most characteristic property of the elements and can be understood in terms of their electronic configuration. हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर वैलेंसी डिसाइड करते हैं। The valence of the representative elements in is usually, though not necessarily, equal to the number of electrons in the outermost orbitals. जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम। तो यहाँ लिथियम जो है किस पीरियड में है, और इसका जो है आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसलिए जब एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी एक होगी। तो उसी कारण इज यूजुअली, सामान्यतः ऐसा होती है, इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, मोस्ट ऑर्बिटल। और एंड आर या इक्वल टू 8 माइनस द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एज शोन इन द बिलो। अब जैसे आपको ऑक्सीजन का केस लीजिए, ये सल्फर तक फर्स्ट सेकंड और उधर थर्ड और फोर्थ में ये आपकी बात प्रमाणित होती है कि नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू number of the electron that occupy the outermost cell. लेकिन ऑक्सीजन के बाद कंसीडर द केस ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ऑक्सीजन in outermost electron has 2s2 p4 configuration, 1s2 2s2 2p4. Oxygen atomic number of oxygen is 8, that's why its electronic configuration is 1s2 2s2 2p4. It means total number of electron in outermost cell, that is second cell, is 2s2 2p4 6, but the valency is not the 6. What is the valency of oxygen? You are already aware of the fact that valency of oxygen is 2. That's why this sentence has been written R equal to the 8 minus the number of outermost electrons. 8 minus 8 में से number of outermost electron को निकाल दीजिए। तो 8 में से outermost electron जो है ऑक्सीजन के 6 निकाल देंगे तो 2 जो है इसकी वैलेंसी जस्टिफाइड होगी। तो दिस इक्वल्स टू द नंबर ऑफ electrons in outermost cell and R equal to the 8 minus the number of outermost electron as shown in the figure. Similarly for fluorine, fluorine has 7 electron in outermost cell. क्या इसकी वैलेंसी 7 होती है? नहीं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है।
8 माइनस 7 यानी इसकी वैलेंसी 1 होती है, एक एक्वायर इलेक्ट्रॉन करने का। तो आजकल हम वैलेंसी को छोड़ करके एक नया टर्म्स जो है लेते हैं जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। Nowadays we define the atom in terms of its oxygen state, not the valency. Let us see. Nowadays term oxidation stage is frequently used for valency, the oxidation state of an element in a particular compound can be defined as the charge acquired by its atom on the basis of electronegative concentration from the other other atom in the molecule. Consider sodium hydride, sodium chloride. Sodium chloride, in the case of sodium chloride, sodium will have +1 charge because chlorine is more electronegative as compared to the sodium. The electron density will shift toward the chlorine atom. That's why this will acquire -1 charge. And if this is -1, then sodium must be the +1 to counterbalance to make the molecule itself neutral. That's why sodium has +1 oxidation state and chlorine has -1. Consider the second case, sodium hydride. Consider the case of HCl. Here Cl is more negative, hydrogen is less negative. Cl requires the -1 charge oxidation state and hydrogen +1. But in the case of sodium hydride, NaH, Na is more electropositive. This requires the +1 and hydrogen becomes the negative. So the oxidation state of an element in a compound depends upon the electronegativity difference in between the two atoms that are attached. The atom having the stronger electronegativity will acquire the minus charge, and at a net result the second atom which has lower electronegativity will acquire the positive charge. I have made a table, I will show later on. अब consider the case of ऑक्सीजन OF2, एक मालिक्यूल है OF2 और दूसरा मालिक्यूल है Na2O. What do you expect? The oxidation state of oxygen in this OF2 and the oxygen state of oxygen is in Na2. बहुत बड़ा गेम है। यहाँ पर देखो कि क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो, one oxygen atom is attached with two fluorine atoms on either side. One fluorine is on the right hand side and another fluorine on the left hand side. And since the fluorine is more electronegative as compared to the oxygen, that's why this will acquire -1 charge. So right hand side का fluorine -1 oxidation state, left hand का fluorine -1 oxidation state, and oxygen then will acquire the +2 to make the molecule neutral. Oxygen will have +2 oxidation state and each of the fluorine flanked with the oxygen on either side will have a -1 oxidation state. But see case here sodium Na2O, oxygen is more negative as compared to the sodium. That's why this oxygen will have a -2 oxidation state, and there are two sodium atom. Each sodium atom will have +1, and total of the two sodium atom will be equal to +2 and oxygen -2, and this will, if you add, gives the 0. तो व्हाट आई एम एम्फेसाइजिंग, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट
यौगिक में कंपाउंड के नेचर पर डिपेंड करती है। और मैं पहले भी एग्जाम्पल दे चुका हूं कि एक अखाड़े में दो पहलवान लड़ रहे हैं, मिस्टर एक्स इज विनर, वाई इज लूजर, लेकिन वही आप जो है एक्स को जेड से लड़ा दीजिए तो हो सकता है उस वक्त जेड जीत जाए, तो ऑक्सीजन उस वक्त लूजर हो जाएंगे, एक्स लूजर हो जाएंगे, जेड विल बी द विनर। तो दिस इज द केस ऑफ कंपैरेटिव विथ रेस्पेक्ट टू फ्लोरीन इज more electronegative with respect to oxygen, and here oxygen is more electronegative with respect to sodium. That's why here oxygen acquires -1 -2 and here oxygen acquires +2. See, a number of compound have been given. देखो यहां पर जो है ग्रुप है फर्स्ट सेकंड, फिर उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17। ये आपका नोबल गैस है, ये आपके हेलोजन है, और ये आपके क्या है, ऑक्सीजन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली है, और ये आपका कौन सा, फर्स्ट आपका लिथियम फैमिली, फिर उसके बाद क्या कहते हैं बेरिलियम, और फिर ये एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद ये कार्बन, और कार्बन के बाद ये नाइट्रोजन, सल्फर एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप दे लीजिए जी। सल्फर तो नीचे आता है, हाँ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आपको एल्युमिनियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। दिस इज द फॉर बोरान and this is for carbon and this is for nitrogen and this is for oxygen and this is for chlorine। अब यहां पर देखो, यहां पर 7 आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब कि एक परिभाषा के हिसाब से कि नंबर ऑफ वैलेंसी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, तो 7 हो जाएगी। लेकिन यही अभी आपने ऊपर देखा कि जब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर हेलोजन से जो है हो जाएगा, मान लीजिए कि हेलोजन में ही आप आपस में कंपाउंड बने और एक हेलोजन जो है दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो उस वक्त जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो माइनस हो जाएगा और दूसरा प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए बुक में आपको दिया था 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल, तो 8 और माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 7 है, 8 में से 7 घटाओ तो 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 6 तो हो ही जाएगा। आप याद करिए एंड आवलिक आर वर्ड लगा हुआ था, वो तो होगा ही, उसके साथ ये दूसरा भी होगा। ये आपका 5 का 5 होगा, लेकिन दूसरा क्या होगा, 8 में से 5 घटा दीजिए 3। यहाँ आपका 4 होगा, चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, और 8 में से 4 घटा देंगे तब भी जो है 4 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपको नंबर ऑफ वैलेंसी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको 8 में से 3 नहीं घटा सकते, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना और देना, ट्रांसफर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल अप टू द 4। इन द केस ऑफ इन्यूमरेबल नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वी हैव द वैलेंसी ऑफ carbon as a 4 in almost all the organic compounds। तो ये आपका है। फिर उसके बाद यहाँ देखो, अब देखो सेम जो है लिथियम, यहाँ लिथियम +1 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर जो कि +1 हमेशा होता था जैसे Cl में जनरली, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन -1 होगा और लिथियम +1 होगा, क्योंकि लिथियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो यहाँ -1 है, ये +1 है। सिमिलर इज द केस फॉर सोडियम हाइड्राइड एंड पोटेशियम हाइड्राइड। इन ऑल दीज केसेस हाइड्रोजन इज -1 and this alkali metal having the +1 charge। And see here, the same compound lithium, sodium and potassium, they are forming oxide, corresponding oxide, lithium oxide, sodium oxide और potassium oxide। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, -2 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -2 होगा, और एक
दो लिथियम का मिल करके कंबाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। इसका मतलब कि एक लिथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। उसी तरह सोडियम का भी +1 होगा, यहाँ पोटेशियम का भी होगा। उसी तरह यहाँ देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब यहाँ कैल्शियम +2 है तो हाइड्रोजन का -2 होगा, दो हाइड्रोजन का मिला के -2 होगा तो एक हाइड्रोजन को -1 होना पड़ेगा। उसी तरह मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, ये सबका जो है +2 होगा और सभी ऑक्सीजन का -2 होगा। उसी तरह आप बोरान देखिए, B2S6 और एल्यूमिनियम trihydrate. In all these cases, hydrogen is negative. Here boron, aluminum, gallium, indium. Here these are the positive and these are the negative. यहाँ पर आपका कार्बन है, ये अमोनिया है, अब वाटर। वेरी इंटरेस्टिंग केस आप जो देखिए, हाइड्रोजन, द सेम एलिमेंट हाइड्रोजन इज फॉर्मिंग different compound with oxygen, sulfur, selenium and tellurium. Very interesting example. ये देखिए हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन -2, यहाँ पर +1 होगा, दो हाइड्रोजन का +2 हो जाएगा, -2 +2 एंड -2 मेक्स 0। हियर हाइड्रोजन S2, एक हाइड्रोजन का +1 है, दो हाइड्रोजन का मिल करके +2 होगा, -2 नेट 0 हो जाएगा। उसी तरह से जो है ये होगा, ये होगा, फिर उसके बाद HF। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर आपको H नेगेटिव दिख रहा था, यहाँ पर H सब क्या है, पॉजिटिव होगा, +1। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन विल हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसी तरह से ये है। अब उसको देखो, इस बात को यहाँ पर जो है हमने एकदम अलग अलग से, ये आपको NCERT बुक में नहीं है और इसीलिए बच्चा कंफ्यूजन करता है। ये लिथियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, OF2 है। इसमें जो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड ऑक्सीजन। और जो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेकेंड स्टेट, ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखिए, एक ऑक्सीजन का -2 होगा, दो लिथियम का मिला करके +2 होगा, इसलिए एक लिथियम का +1 आप ईच लिथियम आयन। उसी तरह से +1 आप ईच लिथियम आयन, यहाँ +1 आप ईच लिथियम आयन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन सब में क्या था, -2 था, लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन का पॉजिटिव हो गया। वही हमने कहा कि एक पहलवान जो एक अखाड़े का विनर है, वो ज़रूरी नहीं कि यूनिवर्सल विनर हो, विथ रेस्पेक्ट टू उसकी कुश्ती किसके हो रही है। अगर आपकी कुश्ती आपसे थोड़ा सा जो है कमज़ोर से हो जाए तो आप जो है विनर हो जाएंगे, लेकिन अगर आपकी कुश्ती जो है गामा पहलवान से करा दिया जाए, मिस्टर जो है क्या कहते हैं, जो इंडिया फेम का जो है आपका रेसलर है, तो जाहिर सी बात है कि वो जीत जाएगा, आप लूजर हो जाएंगे। तो इन द सेम केस ऑक्सीजन एंड F2, हियर F2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, द 2 फ्लोरीन एटम विल रिक्वायर total of -2 charge and each fluorine will have -1, and oxygen, this is the single one, this will have +2. Thanks you for patience sharing. I hope more and more thing would have been cleared. If there is any query, kindly ask through the YouTube videos, the platform from which the discussion is being loaded. Thanks a lot.